FIA نے محمد خان بٹی پر مقدمہ درج کر لیا۔ محمد خان بٹی پر اینٹی کرپشن کی درخواست پر منی لانڈرنگ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مزید تفصیلات دیں گے راہیل علی سے۔ جی راہیل۔ جی FIA نے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے پرنسپل اسٹاف افسر محمد خان بٹی اور جو SDO تھے ہائی وے کے رانا محمد اقبال سمیت دیگر لوگوں پر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا پرچہ جو ہے وہ درج کر لیا۔ یہ پرچہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی درخواست پر جو ہے وہ درج کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے اینٹی کرپشن نے جو ہے ان افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا جس میں کرپشن کے الزامات تھے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد خان بٹی نے اچھی جگہوں پر پوسٹنگ کی عوض جو ہے وہ SDO جو رانا محمد اقبال سمیت دیگر لوگوں سے جو ہے وہ کروڑوں روپے کی رشوت جو ہے وہ موصول کی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی درخواست پر FIA نے باقاعدہ طور پر منی لانڈرنگ دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کر لی ہے، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ محمد خان بٹی نے کروڑوں روپے کے جو ہے وہ اچھی پوسٹنگیں لے کے دیں مختلف لوگوں کو اور جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی۔ اس سے جو ہے وہ FIA نے تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اس حوالے سے جو اثاثہ جات ہے محمد خان بٹی کے، اس کی بھی جو ہے وہ تفصیلات منگا دی ہیں۔ مقدمہ جو درج کیا گیا FIA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ محمد خان بٹی جو ہے وہ SDO ہائی وے رانا محمد اقبال جو ہے کئی سالوں سے محمد خان بٹی کو رشوت دیتا تھا اور کئی افسران بھی محمد خان بٹی کے لیے کام کرتے تھے۔ سرکاری فنڈ سے محمد خان بٹی کو کروڑوں روپے جو ہے وہ دیتے رہے۔ رشوت وصولی کے وقت مونا سلائی اور سابق وزیر اعلیٰ ارشد سائی جو ہے وہ ان کے وزیر جو تھے افسر صاحب وہ بھی جو ہے محمد خان بٹی کے ساتھ گھر پہ موجود تھے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ متن میں ان چیز کا ذکر کیا گیا اور اب FIA جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے تحت جو ہے وہ تحقیقات کرے گا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا اور جو منی لانڈرنگ کی دفعات ہیں وہ اس مقدمے میں جو ہے وہ درج کی گئی ہیں۔ جی اچھا راہیل، ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان کے خلاف کس کس محکمے میں کتنے مقدمے درج کیے گئے ہیں؟ محمد خان بٹی اور رانا محمد اقبال جو ہیں ان کے خلاف پہلے محکمہ اینٹی کرپشن نے جو ہے مقدمہ درج کیا تھا اور یہ مقدمہ جو درج کیا گیا تھا رشوت کے حوالے سے جو ہے وہ درج کیا گیا تھا کہ رشوت لے کے جو ہے وہ لوگوں کو پوسٹنگ دی گئی اور مختلف سرکاری ٹھیکوں میں جو ہے وہ پیسے وصول کیے گئے۔ لیکن اب جو FIA نے جو ACC جو ان کا سرکل ہے اینٹی کرپشن سرکل، اس نے جو مقدمہ درج کیا ہے وہ منی لانڈرنگ کے تحت کیا ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمہ درج کیا، جس میں جو دیکھا جائے گا کہ رشوت کے پیسے جو ہیں وہ کہاں خرچ کیے گئے، کیا کون کون سی جائیدادیں جو ہیں وہ اس حوالے سے خریدی گئی۔ اس حوالے سے تمام منی ٹریل جو ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ مختلف جو ادارے ہیں ان سے ریکارڈ لیا جائے گا کہ ان پیسوں کو بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے، بینکوں میں جمع کروایا گیا ہے، یہ ان سے جائیدادیں خریدی گئی ہیں۔ اس حوالے سے FIA کا جو ACC سرکل ہے وہ اس کیس کی تحقیقات کرے گا، کیونکہ منی لانڈرنگ میں جو چیزیں شامل کی جاتی ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کرپشن کے پیسے ہیں وہ کہاں خرچ کیے گئے، ان سے کون کون سی جائیداد خریدی گئی ہے، اور پھر ان جائیدادوں کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سیل بھی کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ مختلف دفعات کے تحت کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب کیونکہ محکمہ اینٹی کرپشن ہے جو تو رشوت کے حوالے سے جو ہے مقدمہ درج کیا تھا، لیکن FIA اینٹی منی لانڈرنگ کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی کرے گی۔ جی شکریہ راہیل آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دریا کے پانی کو صاف کرنے کا پلان کاغذوں تک محدود ہے، جبکہ روڈا نے دریا کو صاف کرنے کے بجائے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جانب رخ کر لیا ہے۔ 2 سال بعد بھی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ مزید جانیں گے زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا اس بارے میں۔ لاہور میں بننے والی نئی اتھارٹی اہداف کے تعاقب میں پیچھے رہ گئی ہے۔ راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کے لیے بنائی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دریا کے لیے عملی طور پر خاطر خواہ اقدامات نہ کیے، جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے بھی راوی منصوبے سے توجہ ہٹا لی ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دریا کو صاف کرنے کی بجائے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لی ہے۔ موجودہ صورتحال میں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دریا کو صاف کرنے کے لیے کنسلٹنٹ کے دورے کروائے، لیکن ابھی تک دریا سے ملحقہ جو ایریاز ہیں ان کو تاحال اتھارٹی کی جانب سے کلیئر نہیں کروایا جا سکا۔ اس اتھارٹی کو بنانے کا مقصد یہ تھا، جس میں اولین مقصد یہ تھا کہ دریا کے پانی کو صاف کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ 1,08,000 ایکڑ پر نیا شہر آباد کیا جائے گا۔ تاہم پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ دریا کے اندر 46 کلومیٹر طویل اور 1 کلومیٹر چوڑی جھیل بھی بنائی جانی تھی، جبکہ 6 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جانے کا بھی پلان تھا، تاکہ راوی کے گندے پانی کو صاف کر کے اس کو دوبارہ استعمال میں لایا جا سکے۔ لیکن اتھارٹی کا قیام عمل میں لائے 2 سال بعد بھی ان ٹریٹمنٹ پلانٹس پر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔ صرف کنسلٹنٹ کے دورے کروائے گئے ہیں اور جو بیرون ملک بین الاقوامی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ MOU سائن کر کے اس منصوبے کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راوی کا پانی ہر گزرتے دن کے ساتھ گدلا سے گدلا تر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن
जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से अभी तक इस मंसूबे के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए अराजी मुख्तस की गई थी, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस अराजी पर अब मुबैना तौर पर कब्जे होना शुरू हो गए हैं और अथॉरिटी की जानिब से अभी तक। अच्छा ज़ैन, ये भी बताइएगा इस गंदे पानी की वजह से कई बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं, तो रूटा की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाएंगे ताकि पहले ही काम कर लिया जाए इस पर? बुनियादी तौर पर दरिया के पानी को साफ करने के लिए और जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको गंदा होने से बचाने के लिए ही ये ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का जो मंसूबा है वो बनाया गया था। इन्हीं ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए ही इस पानी को साफ किया जाना था ताकि जो दरिया के अंदर आलूदगी है उसका खात्मा किया जा सके। लेकिन इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से और आलमी इदारों की जानिब से जो फंड्स हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए और ना ही वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से एक्टिंग कमेटी से इन ट्रीटमेंट प्लांट्स की मंजूरी ली गई है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगने की वजह से जो पानी है उसकी ट्रीटमेंट का काम भी नहीं हो रहा और जो दरिया का पानी है वो मजीद गंदा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो भी फैल रही हैं और जो ताफुन है वो भी इस दरिया से उठना शुरू हो चुका है। ठीक है, ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर की ज़ेर सदारत इजलास सालाना तरक्याती मनसूबाजात और वर्चुअल गवर्नेंस का जायज़ा लिया। तमाम तर मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की हिदायत। मज़ीद तफसीलात लेंगे शबीर हैदर से। जी शबीर, क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सालाना तरक्याती मनसूबाजात और वर्चुअल गवर्नेंस 9211 का जायजा भी लिया गया और इस मौके पर महकमाना अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। और इस मौके सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर ने कहा कि तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए और मनसूबाजात की तकमील के लिए महकमा फिनांस और बिल्डिंग समेत तमाम मुतल्लिका अदारों से रवाबत पेश किए जाएं। इस मौके पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने यह भी कहा कि आइंदा माली साल के लिए शोबाजाती ज़रूरियात के ऐन मुताबिक मनसूबाजात तरतीब दिए जा रहे हैं और नए मनसूबाजात मुरतब करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत यकीनी बनाएं। मशावरत के बाद कलील वस और तवील मुद्दती मनसूबाजात मुरतब किए जाएँ। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि महकमाना वर्चुअल गवर्नेंस सिस्टम 9211 स्टेट ऑफ द आर्ट निज़ाम है। इस निज़ाम को जो है वो ट्रेसेबिलिटी और डिजीज जोनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और मॉनिटरिंग और फार्मर फीडबैक के लिए अपनी तर्ज का ये वाहिद निज़ाम है। और इस इजलास में अगर बात की जाए तो एडिशनल और डिप्टी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। जी शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पंजाब मिनरल कॉरपोरेशन का 4 साल से ऑडिट न होने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी मादनियात बाबर ईमान बाबर का सख्त इजहार नाराज़गी। सेक्रेटरी मादनियात ने अफसरान को फौरी ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया है। राहिल अली से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी राहिल, बताइएगा क्या इंकशाफात सामने आए हैं? 4 साल से ऑडिट न होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी मादनियात बाबर ईमान बाबर ने जो है वो सख्त इजहार नाराज़गी किया और अफसरान की सरजनिश करते हुए उन्हें फौरी तौर पर ऑडिट करने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि किसी किस्म की जो है वो करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी ऑफिसर करप्शन में मुलविस निकला है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ कि जब आज एक अहम इजलास में एमडी पंजमन जो थे जुबैर हुसैन करल वो इदारे की ब्रीफिंग दे रहे थे। उसमें ये बात सामने है कि इदारे का जो है वो ऑडिट नहीं हुआ, जिस पर सेक्रेटरी ने ज़ाहिर नाराज़गी किया और इसके बाद उनका कहना ये था कि इस जो काम करने के जदीद तरीकों को जो है वो अपनाया जाए। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी कैप्टन वकास राशिद डीएस टेक्निकल राशिद लतीफ़ समेत दीगर लोग जो है वो शामिल थे और इस मौके पर सेक्रेटरी जो है उनका ये कहना था कि फौरी तौर पर ऑडिट करवाया जाए और कोई भी अफसर अगर करप्शन में या माली बेज़ाब्तगी में निकला तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताजरों को हरासा करने का मामला है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी फाइनेंस का एलडीए के खिलाफ निगरान वज़ीर आला पंजाब को ख़त। एलडीए के गैर कानूनी ऑप्शंस रखवाने का मुतालिबा है, जबकि अहमद जवाद राना ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एलडीए का स्टाफ ताजरों को नोटिस भिजवा कर हरासा कर रहा है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी फाइनेंस का एलडीए के खिलाफ निगरान वज़ीर आला पंजाब को ख़त और इसमें कहा गया कि एलडीए के गैर कानूनी ऑपरेशंस को रुकवाने का मुतालबा है, जिस पर अहमद जवाद राना ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एलडीए का स्टाफ ताजरों को नोटिस भेजकर हरासा कर रहा है। ताजरों को हरासा करने का मामला है जिस पर आपको अपडेट किया जा रहा है। ये ख़त लिखा गया और एलडीए के गैर कानूनी ऑपरेशंस रुकवाने का मुतालबा भी किया गया।
احمد جواد رانا نے خط میں موقف اختیار کیا کہ LDA کا سٹاف تاجروں کو نوٹسز بھیج کر ہراساں کر رہا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے محمد یاسین سے۔ یاسین بتائیے گا۔ پیپلز پارٹی وقتی پنجاب کے سیکرٹری فنانس احمد جواد رانا ایڈوکیٹ نے نگران وزیر پنجاب کے خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا تاجروں کو غیر قانونی طور پر LDA کا فیلڈ سٹاف جو ہے وہ ہراساں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ LDA کا فیلڈ سٹاف جو نگران حکومت کی ریپوٹیشن تباہ کرنے کے لیے تاجروں کو غیر قانونی نوٹس بھیج کر ہراساں کر رہا ہے۔ LDA کا فیلڈ سٹاف تاجروں کو آئے روز آپریشن کرنے کی دھمکی دے کر ان کی جیبیں خالی کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ فوری طور پر LDA کے ظالمانہ آپریشن کو روکوانے میں فوری اقدامات کریں۔ انہوں نے مزید اپنے مراسلے میں کہا کہ LDA کے اقدامات سے پیدا ہونے والے اشتعال سے امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ DG LDA اور ڈائریکٹر کمرشل خاص ایجنڈے کے تحت نگران حکومت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد یاسین۔ اور چاروں طرف ٹریفک جیم، چپرجی سے گزرنا محال ہو گیا۔ ترقیاتی کاموں کے دوران کھدائی کے باعث سڑکوں کی بندش سے شہری پریشان ہو گئے۔ چپرجی میں ٹریفک سسٹ روی کا شکار ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں کی مشکلات سے متعلق بھی مزید جانیں گے شاہزیب شہزاد سے، جو کہ اس وقت وہ وہاں پر موجود ہیں۔ جی شاہزیب بتائیے گا، وہاں پہ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں چپرجی چوک پر موجود ہوں اور یہاں پہ ترقیاتی کاموں کے باعث ٹریفک کا دباؤ برقرار ہے۔ اگر آپ کو میرے کیمرہ مین دکھا سکے میرے عقب کی جانب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری ہیں، اور پیچھے سے جو 3 ٹریک جو سڑک ہے اس کے 2 ٹریکس کے اوپر ترقیاتی کام جاری ہیں، اور ٹریفک کے لیے صرف ایک ٹریک ہی اوپن ہے، جس کے باعث جو ہے وہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، رکشے جو ہیں وہ یہاں پہ پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ وہ والی ٹریفک ہے جو کہ MAO کالج اور جین مندر چوک کی جانب سے چپرجی کی طرف آ رہی ہے۔ وہ والی سڑک کے اوپر جو ہے وہ ترقیاتی کام کے بعد ٹریفک کا شدید دباؤ ہے، اور جس کے اندر شہری جو ہے وہ خوار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ وارڈن جو ہے آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وارڈن بھی یہاں پہ کھڑا ہے جو کہ ٹریفک بحالی کے لیے کوششیں اپنی جاری رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو چپرجی چوک ہے، لٹن روڈ سے آنے والی ٹریفک اور پونچھ روڈ سے آنے والی ٹریفک جو چپرجی روڈ سے آتی ہے، تو یہ والی سڑک وہ ہے، اور یہ بھی جو ٹریفک ہے وہ بھی اسی سڑک کے اوپر ملتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ سڑک چھوٹی ہو جانے کے باعث جو ہے وہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگتی جا رہی ہیں اور موٹر سائیکلیں کی لمبی قطاریں لگتی جا رہی ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے وہ کلمہ چوک پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہاں پہ بھی جو ہے جو ترقیاتی کام ہے ان کو کیا جا رہا ہے، جس کے باعث جو ہے وہاں پہ بھی ٹریفک جیم کی صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم زمان پارک کی بات کر لیتے ہیں تو زمان پارک کے باہر بھی کارکنان کا PTI کی کافی زیادہ رش دکھائی دے رہا، اور جو کنال روڈ ہے وہاں پر بھی ٹریفک جیم اور کبھی سست روی شکار ہونے کا جو ہے صورتحال نظر آتی ہے۔ شاہزیب، ویسے تو 15 فروری تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 15 فروری تک کام جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا، تو ابھی تعمیراتی کام کی بات کریں تو یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بالکل، اگر ترقیاتی کام کی بات کر لی جائے تو جو تازہ ترین صورتحال ہے اس ترقیاتی کام کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اپنی ڈیڈ لائن تک جو ہے وہ مکمل نہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی یہ ٹریفک اسی طرح دباؤ کا شکار رہے گی۔ جب تک یہ ترقیاتی کام ہوتا رہے گا تو سڑک جو سائز ہے سڑک کا وہ 3 ٹریکس کے اوپر ہے، لیکن ترقیاتی کام کے باعث ایک ٹریک ہی ٹریفک کے لیے کھلا ہوا ہے، تو ٹریفک کا دباؤ بھی اسی طرح برقرار رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، شاہزیب اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ چاروں طرف ٹریفک جیم ہے اور چپرجی سے گزرنا اس وقت شہریوں کے لیے محال ہو چکا ہے۔ تعمیراتی کاموں کے دوران کھدائی کے باعث سڑکوں کی بندش سے شہری پریشان ہو چکے ہیں۔ چپرجی میں ٹریفک سست روی کا شکار ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مناظر بھی آپ لاہور نیوز کے اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ غریب کا ایندھن سمجھا جانے والا غریب کی پہنچ سے ہی باہر ہو گیا۔ طلب میں اضافہ ہونے پر LPG مافیا سرگرم۔ شہر بھر میں اوگرا ریٹ پر LPG دستیاب ہی نہیں، جبکہ متعلقہ ادارے ریٹ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے فاہد امین۔ LPG بھی غریب کی پہنچ سے باہر، طلب بڑھتے ہی LPG مافیا سرگرم۔ شہر بھر میں اوگرا کے مقرر کردہ نرخوں میں LPG دستیاب نہیں، مافیا اپنی مرضی کی قیمتوں پر LPG فروخت کر رہا ہے۔ اوگرا کی جانب سے LPG کی قیمت 263 روپے 95 پیسے مقرر۔ شہر میں 280 سے 300 روپے تک LPG کی فروخت جاری۔
चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि LPG माफिया गरीब की जेबों पर डाके डाल रहा है। हुकूमत लोकल प्रोडक्शन बढ़ाए तो कीमत कंट्रोल हो सकती है। कोई भी इदारा गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। जब तक हम अपनी लोकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे यही सूरत रहेगी। हमारे पास डॉलर नहीं है, हम लोग LC नहीं खोल पा रहे, फिर बाहर से इंटरनेशनल जो कीमत है वो भी बढ़ गई, क्योंकि इस कीमत के मुतहम्मल नहीं है, ये गुफ्ते खरीद से बाहर होगी। हमें लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और ये जो कोटा सिस्टम है, ये बाकी चीज़ें हैं, इनको पूरी सप्लाई चेन को मॉनिटर करना होगा, फिर जाकर के ठीक होंगे। अब ये मनमानी कीमत है। LPG एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर का मजीद कहना था कि ओगरा को अपने मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद करवाना चाहिए, वरना माफिया गरीब पर मजीद बम गिराएगा। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, गुज़श्ता 3 माह में बिल्डिंग मटीरियल के रेट्स में 14 से 83% तक इजाफा हो गया है। तामीराती मनसूबों की लागत 35.8% बढ़ गई है, जबकि अहम मनसूबों के ठेकेदारों ने महंगाई की मुनासबत से नए रेट्स की दरख्वास्तें दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती कीमतें। एक माह के दौरान 60 ग्रेड स्टील का रेट 2,06,000 से 2,80,000 रुपये फी टन हो गया। स्टील 60 ग्रेड की फार्म डी की कीमतों में 14% इजाफा हुआ। सीमेंट का एक बैग 32% बढ़ गया। बोरी की कीमत 850 रुपये से 1200 रुपये तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत एक माह में 40 रुपये तक का इजाफा हुआ। बजरी के निर्ख फी मुरब्बा फिट 42 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो गए। एक माह के दौरान ईंटों की कीमतें भी 20% बढ़ी। नए रेट्स के मुताबिक तखमीना में इजाफा करने से जारी तरक्याती कामों की लागत में 2 अरब और नए तरक्याती मंसूबों की लागत में 5 अरब रुपए का इजाफा होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स ने LDA से बाई एनुअल रेट्स में 40% इजाफे की इस्तदा कर दी। आपको बताएं कि कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी पर अस्पताल बनने के बजाय डंपिंग साइट बन गई है। गुलाब देवी अंडरपास के कॉन्ट्रैक्टर ने कोट लखपत मंडी की अराजी पर बीचिंग और मिक्सिंग प्लांट्स लगा दिए हैं, जबकि निजी कंपनी और प्राइवेट अफराद ने सब्जी मंडी की कीमती अराजी पर कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल-आबदीन। साबिक वज़राए आला के ऐलानात को ब्यूरोक्रेसी ने रिवर्स गेयर लगा दिया। 2 वज़राए आला ने फिरोजपुर रोड पर अरफा टावर से मुल्हक्का अराजी पर अस्पताल बनाने की मंजूरी दी। पंजाब काबीना के इजलास में कोट लखपत मंडी की अराजी पर स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल का फैसला किया गया। ब्यूरोक्रेसी ने अस्पताल की बजाय सब्जी मंडी की अराजी को डंपिंग और कंटेनर साइट बना दिया। गुलाब देवी अंडरपास की तामीर के साथ सब्जी मंडी की अराजी कॉन्ट्रैक्टर को दी गई। कॉन्ट्रैक्टर ने कोट लखपत मंडी की अराजी को बीचिंग और मिक्सिंग प्लांट्स लगा दिए। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से LDA की अराजी इस्तेमाल करने पर किराया भी अदा नहीं किया गया। निजी कंपनी और प्राइवेट अफराद ने सब्जी मंडी की कीमती अराजी पर कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया। मंडी के 118 किनाल रकबे पर जगह जगह कूड़े और कंक्रीट के पहाड़ बने हुए हैं। कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी बदबू और ताफुन का मौजद बन गई। गैर कानूनी डंपिंग साइट बनने से माहौलियाती आलूदगी फैलने लगी। डायरेक्टर हाउसिंग LDA का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी किया गया है कि फिलफोर अपनी मशीनरी को हटाएं और किराया भी अदा करें। तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे मुलाजमीन एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिदीन ने कहा कि जब तक हक नहीं मिलता एहतजाज जारी रखेंगे। ये रिपोर्ट देखें। महकमा रेलवे ने एक बार फिर वही किया जो हर महीने होता है। रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिली, महंगाई से तंग मुलाजमीन ने काम काज छोड़ा और बोगी रोड पर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज किया। एहतजाज में तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मरकजी सदर रेलवे मुलाजमीन शेख अनवर का कहना था कि मुल्क भर के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन और डिविजनल हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं। जब तक तनख्वाहों की मुकम्मल अदायगी नहीं हो जाती एहतजाज जारी रहेगा। हर अदारे को बर वक्त तनख्वाह मिल जाती है, नहीं मिल रही तो रेलवे मुलाजमीन को नहीं मिल रही। क्या पाकिस्तान रेलवे जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो हमारे साथ क्यों ऐसा सुतेली माजा सा सलूक किया जा रहा है? हम आज सराप पे एहतजाज हैं। हमें बड़ा दुख और तकलीफ है कि ना हमारे मुलाजमीन अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, एक महीने के बाद तनख्वाह मिल रही है। मुजाहिरीन ने रेलवे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हर माह पेश आने वाली परेशानी से जान छुड़वाई जाए। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। और अपने रहनुमा की हिफाजत का मिशन अहले लाहौर के लिए तकलीफदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। समान पार्क में PTI कारकुनान की डेरे ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट बन गए हैं। ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नजर आने लगी है। केनाल रोड का शुमार लाहौर की मसरूफ तरीन शाहराहों में होता है, जहाँ सुबह शाम बड़ी तादाद में गाड़ियों,
बाइक्स और दूसरी ट्रैफिक की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहता है। सिग्नल फ्री होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक कम ही जाम होती है, लेकिन अब सूरत हाल किसी कदर तब्दील दिखाई देती है। इसकी वजह ज़मान पार्क के गिरदा गिर्द PTI कारकुनों के कायम करदा कैंप बने हैं, जिनके बाइस मॉल रोड से धर्मपुरा तक ट्रैफिक का जाम रहना मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर गया है। पेट्रोल महंगा हो गया है, ऊपर से महंगाई इतनी है, इतना वेट करना पड़ता है, कतारों में खड़ा होना पड़ता है। इन लोगों को अवाम का ख्याल नहीं है, बस इनको अपना ख्याल है, ये अपनी दुश्मनी पूरी कर रहे हैं, उससे अंदर करो उससे अंदर करो। कॉलेज से लेट हो जाती हैं, अटेंडेंस में इशू आता है, इस वजह से तो अटेंडेंस भी पीछे जा रही है। पहले हम आधे घंटे में पहुंच जाते थे। ये सूरत हाल इन हालात में कदरे ज़्यादा अफसोसनाक हो जाती है कि इसका बाइस वो लोग बन रहे हैं जो खुद अवामी मसाइल हल करने के दावेदार हैं। अक्सर औकात एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक जैम में फंसी दिखाई देती हैं, तो वक्त पर अपनी अपनी मनाजिल पर पहुंचने वाले भी च्यूंटी की रफ्तार से आगे बढ़ते नजर आते हैं। अगर इन्होंने कुछ करना है तो ठीक है करें, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों को ये ट्रैफिक चलती रहनी चाहिए। ट्रैफिक जैम है, प्रॉब्लम तो है सबको ही है, हमें अकेले को तो नहीं है, आना जाना बहुत मुश्किल है, साथ फैमिली हैं, बच्चे हैं, हर चीज़ है। इन हालात में ट्रैफिक पुलिस भी बेबस दिखाई देती है। बड़े मसाइल तो क्या हल होने हैं कि हम इतनी कोशिश भी नहीं कर रहे कि हमारी वजह से जो छोटे छोटे मसाइल पैदा हो रहे हैं कम से कम उनको हल करने की तरफ ही कोई तवज्जो दे दी जाए और ये जानने की कोशिश ही कर ली जाए कि हमारी वजह से हर रोज़ कितने अफराद को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। और पाकिस्तान की सियासत पर मखसूस ख़ानदानों का राज। एक ही फैमिली के मुतअद्दिद अफराद एक से ज़ायद जमातों में शामिल हैं। सियासी जमातों में शामिल अफराद अपने अजीज़ को पार्टियों के खुफिया राज भी अफशा करते हैं। ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान की सियासत पर ख़ानदानों की इजारादारी। एक ही फैमिली के अफराद मुक़्तदर और अपोजिशन जमातों में शामिल सियासी रहनुमाओं का मुखालिफ जमात में शामिल अपने अजीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इंकशाफ। पार्टी पॉलिसी के मुखालिफ खुफिया राज भी एक दूसरे के साथ शेयर करने का इल्ज़ाम। ख़ानदानों की पार्टी पोजीशन पर नज़र डाली जाए तो यूँ लगता है सब एक ही हैं। शाह महमूद कुरैशी PTI और उनके कज़न हैदर ज़मान कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हैं। साबिक चेयरमैन PCB अशरफ ज़का का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और उनकी हमशीरा इशरत अशरफ लीगी रहनुमा जाफर इकबाल की अहलियाँ हैं। PTI के मरकजी रहनुमा शफकत महमूद भी ज़का अशरफ के बरादर निस्बती हैं। मियाँ मिसबा रहमान और उनकी अहलिया साबिक MNA यास्मीन रहमान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मियाँ मिसबा रहमान की हमशीरा लीगी MNA शाइस्ता परवेज मलिक हैं। मियाँ मिसबा रहमान के भतीजे साबिक सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउ रहमान का ताल्लुक भी नून लीग से है। जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी के साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद के बहनोई हैं। पीर पगाड़ा भी मखदूम अहमद महमूद और साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के कज़न हैं। यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे अब्दुल कादिर गिलानी पीर पगाड़ा के दिमाद हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ख्वाजा आसिफ के बरादर निस्बती हैं। अवैस लगारी नून लीग और उनके कज़न मोहसिन लगारी और मोहम्मद खान लगारी PTI में हैं। नून लीग की सुमेरा मलिक और आयला मलिक दोनों बहनें साबिक सदर फारूक लगारी की भांजियां हैं। साबिक गवर्नर जुल्फ़िकार खोसा के बेटे दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी और सैफुद्दीन खोसा का ताल्लुक PTI से है। साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन पीपल्स पार्टी में हैं और उनके भतीजे साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और साबिक सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त तहरीक इंसाफ में है। इस तरह साबिक MPA रईस नबील का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और उनके कज़न साबिक MPA रईस महबूब का ताल्लुक PTI से है। वास्ता में अवामी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया है। 2 कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर के इफ्तिताह के बाद मंसूबा बंद हो गया। 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद कोई नया सेंटर तामीर न हो सका। वास्ता हुकाम ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर्स का दायरा कार वसी करने का ऐलान किया। वास्ता हुकाम ने दावा किया है कि हर सब डिवीजन में टैब फ्राहम कर दिए गए हैं। तमाम सब डिवीजन में कंप्लेंट टैब के ज़रिए दर्ज की जा रही हैं, जबकि मज़ीद 4 सब डिवीजन में कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर्स तामीर कर रहे हैं। वासा के इन ऐलानात के बाद अभी तक किसी भी सब डिवीजन में तामीरात शुरू न हो सकें। वासा हुकाम ने ज़ाती वसाइल से तमाम कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर्स बनाने का प्लान बनाया है। तहरीक इंसाफ के 43 MNAs के इस्तीफ़े मंजूर करने के स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली ने बैरिस्टर अली जफर की वसातत से लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेंबरान असम्बली ने इस्तीफे मंजूर होने से पहले ही वापस ले लिए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली के पास इख्तियार नहीं कि वो इन्हें मंजूर करे। दरखास्त में नुक्ता उठाया गया है कि मेंबरान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफे अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए। दरखास्त गुजारों के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। इस्तीफे मंजूर करने से पहले स्पीकर ने मेंबरान को बुलाकर मौक़िफ़ तक नहीं पूछा। अदालत से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मशीर आमिर सईद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर CCPO लाहौर को रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम चौधरी ने अपने चैम्बर में समाअत की। दरख्वास्त में IG पंजाब, CCPO और FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। आमिर सईद के भाई आदम सईद के वकला असगर अली गिल ने दलाइल दिए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आमिर सईद को बगैर किसी जुर्म के गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। आमिर सईद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए CCPO लाहौर को जुम्मे को मुकम्मल तफसीलात के साथ पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। और कुल मसालिक उलमाए बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज़ बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के रहनुमाओं ने इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। जामे मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में कुल मसालिक उलमाए बोर्ड के ज़ेरे इख्तिमाम ऑल पार्टीज़ बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस सदारत सजादा नशीन आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ पीर सैयद हबीब अरफानी ने की। सजादा नशीन आस्ताना आलिया कोट मठन ख्वाजा मयूनुद्दीन महबूब कुरेजा, हाफिज शुएबुल रहमान कासमी, मरकजी रहनुमा शिया उलमा कौंसिल इलामा हाफिज काजिम रजा नकवी और दीगर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जरूरत पर जोर दिया। मैं सलाम उन लोगों को पेश करता हूँ जो इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफा को इक़्तिदार में लाने की जद्दोजहद करते हैं। इन हादिसात से सबसे ज्यादा नुकसान किस तबके का हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी करते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान उलमा का होता है, मदारिस का होता है, दीनी लोगों का होता है। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने मुल्क में हालिया दहशतगर्दी पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हुकूमत का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। हम हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि ये जो दहशतगर्दी और फिरकावारियत है, ये जो उलमाए किराम का बयानिया है, उस बयानिया के तनाज़ुर में इसको फौरी तौर पर जो है इसका खात्मा होना चाहिए और हमारे इदारे जो है उनको मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए और उनको हम दहशतगर्दी और फिरकावारियत के खिलाफ जो है उनकी शाना बशाना खड़े हैं। अमन कॉन्फ्रेंस में साबिक सूबाई मशीर अकलियती अमूर रोबिन्सन अजीज फ्रांसिस, हिंदू रहनुमा भगत लाल खोखर, मसीही रहनुमा साजिद क्रिस्टोफर भी शरीक हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद और दीगर ने खिताब भी किया, जबकि तलबा के माबैन तो तकरीरी मुकाबले भी करवाए गए जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को आश्कार किया गया। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। वादी कि जहाँ कभी फूल महकते थे और फिजाओं में अबरपारे रक्स करते थे, आज वहाँ तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब। UCP पॉलिटिकल साइंस एंड IR डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे साबिक सेक्रेटरी खारिजा शमशाद अहमद, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट, फैकल्टी मेंबरान और तलबा शरीक हुए। यूनिवर्सिटी के तलबा ने तकरीरी मुकाबले में कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए भारतीय मजालिम को आश्कार किया। दौरे हाजिर में भी कुछ जालिमों ने यमन, फलस्तीन, कश्मीर और दीगर खित्तों में अपने मफादात की भट्टी सुलगाई हुई है और तो और आज भी पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।